পশ্চিমবংগৰ বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকাৰী ব্যক্তিগত সহায়কক গুলিয়াই হত্যা শূন্য দূৰত্বৰ পৰা চন্দ্ৰনাথ ৰথক গুলিয়াই হত্যা দুৰ্বৃত্তৰ আৰক্ষী আৰম্ভ কৰিছে ঘটনাৰ তদন্ত বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকাৰী ব্যক্তিগত সহায়কক হত্যাকাণ্ডক লৈ চলিছে বংগ নৃশংস হত্যাকাণ্ডক তীব্ৰ গৰিহণা দিয়াৰ লগতে সিবিআই তদন্তৰ দাবী টিএমচিৰ ঘটনাৰ তদন্তৰ দাবী জনোৱাৰ লগতে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে নিৰ্বাচনী হিংসা সংঘটিত কৰাৰ অভিযোগ আজি পশ্চিমবংগত অন্ত পৰিব মমতা বেনাৰ্জী চৰকাৰৰ কাৰ্যকাল জনাদেশক অৱজ্ঞা কৰা মমতাক উপেক্ষা কৰি 9 মে'ত পশ্চিমবংগত শপত গ্ৰহণৰ প্ৰস্তুতি বিজেপিৰ ক্ষমতা হেৰুৱাৰ পিছতে অধিক স্পষ্ট তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ গুণ্ডাৰাজ 12 মে'ত অসমত বিজেপি চৰকাৰে শপত লোৱাৰ সম্ভাৱনা 10 মে'ত বিধায়ী দলৰ বৈঠকৰ পিছতে বিজেপিয়ে ৰাজ্যপালক জনাব চৰকাৰ গঠনৰ বাবে আবেদন শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ আমন্ত্ৰণ চাবৰ বিহুত প্ৰিয়ংকা ভৰালীক নিষিদ্ধ ঘোষণা অনিৰ্দিষ্ট কাললৈ প্ৰিয়ংকাক বৰ্জন চাব আঞ্চলিক কঙালী বিহু উদযাপন সমিতিয়ে প্ৰিয়ংকা ভৰালীক স্পৰ্শ কৰাৰো অভিযোগ অস্বীকাৰ বিহু সমিতি হেডলাইন্স আগবঢ়াইছে সানৰাইজ চিকেন কাৰী মছলা ৰন্ধা কৰি তোলে স্পেশাল নমস্কাৰ বাতৰিলৈ স্বাগতম জনাইছো বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকাৰী ব্যক্তিগত সহায়ক চন্দ্ৰনাথ ৰথক গুলিয়াই হত্যা কৰা ঘটনাক লৈ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত আছে আৰক্ষীৰ তদন্ত আগবাঢ়িছে পশ্চিমবংগৰ মধ্যম গ্ৰামৰ বাৰাসাত বুধবাৰে নিশা প্ৰায় 10 পৰা 10:20 মিনিট মানৰ ভিতৰত দুৰ্বৃত্তৰ গুলীত নিহত হ'ল চন্দ্ৰনাথ ৰথ দুৰ্বৃত্তই আক্ৰমণ কৰিছিল অতি কৌশল গ্ৰহণ কৰি দুৰ্বৃত্তৰ গুলীয়ে ভেদি নিছিল চন্দ্ৰনাথ ৰথৰ মূৰ বুকু আৰু পেট দুৰ্বৃত্তই নিচে ওচৰৰ পৰা গুলীয়াই হত্যা কৰিছিল লোকজনক পশ্চিমবংগত সংঘটিত নিৰ্বাচনোত্তৰ হিংসাত দেশজুৰি চাঞ্চল্য ঘটনাৰ সময়ত সেইখিনি সময়ত শুভেন্দু অধিকাৰী নাছিল বংগত বিজেপি চৰকাৰ গঠনৰ পূৰ্বেই এই ভয়ংকৰ ঘটনাই জোকাৰি গৈছে দুৰ্বৃত্তই প্ৰায় 16টাকৈ গুলী চলাইছিল দীৰ্ঘদিন ধৰি শুভেন্দু অধিকাৰীৰ ব্যক্তিগত সহায়ক ৰূপে আছিল চন্দ্ৰনাথ ৰথ চিকিৎসালয়ত চন্দ্ৰনাথ ৰথক মৃত চিকিৎসকে ঘোষণা কৰিলে বিজেপিৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা ভূমিকা পালন কৰিছিল চন্দ্ৰনাথ ৰথে বিশেষকৈ ভবানীপুৰত নিৰ্বাচিত হৈ আহিছে শুভেন্দু অধিকাৰীৰ প্ৰচাৰৰ ক্ষেত্ৰত বা কেম্পেইনৰ ক্ষেত্ৰত খুব এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছিল চন্দ্ৰনাথ ৰথে 41 বছৰীয়া চন্দ্ৰনাথ ৰথ তেওঁ চেষ্টাই অৱসৰ লৈছিলে ভাৰতীয় বায়ু সেনাত প্ৰায় 18 বছৰ অৰ্থাৎ প্ৰায় দুটা দশক কৰ্মৰত হৈ থকা বা সেৱা আগবঢ়োৱাৰ পিছত আৰু তাৰ পিছত তেওঁ এগৰাকী ৰাজনৈতিক ব্যক্তিৰ সৈতে অৰ্থাৎ শুভেন্দু অধিকাৰীৰ সৈতে তেওঁ জড়িত হৈ পৰিছিল শুভেন্দু অধিকাৰীৰ সৈতে জড়িত হৈ পৰাই নহয় তেওঁ খুব এক গুৰুত্বপূৰ্ণ এক ভূমিকা পালন কৰিছিল শুভেন্দু অধিকাৰী খুব এক ঘনিষ্ঠ আছিল আৰু শুভেন্দু অধিকাৰীৰ ইনাৰ সাৰ্কেল বুলি যাক কোৱা হয় অৰ্থাৎ একেবাৰে ঘনিষ্ঠ কেইগৰাকীমান ব্যক্তি আঙুলিৰ মূৰত গণিব পৰা সেই কেইগৰাকীমান ব্যক্তিৰ ভিতৰত আছিল চন্দ্ৰনাথ ৰথ এতিয়া চন্দ্ৰনাথ ৰথক হত্যা কৰাক লৈ কিন্তু বিশেষ ধৰণে উদ্বিগ্নতাৰ বিষয় হৈ পৰিছে আমি বাহনখনৰ দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাইছো সেই যিখন বাহন সেই বাহনখনতে শুভেন্দু অধিকাৰী ব্যক্তিগত সহায়কগৰাকী আছিল শুভেন্দু অধিকাৰীৰ ব্যক্তিগত সহায়ক চন্দ্ৰনাথ ৰথ এই বাহনখনত বহি আছিল বাহনখন চলাই গৈছিল চালকে ঘৰ পাবলৈ প্ৰায় 200 মিটাৰমান আছিল হয়তো তেওঁক অনুসৰণ বহু দূৰৰ পৰা কৰি আহিছিল ঘৰ পাবলৈ 200 মিটাৰমান থকা অৱস্থাতে আগ ভেটি ধৰিছিল আৰু তাৰ পিছতে হত্যা কৰা হ'ল এই মুহূৰ্তত আমি আমাৰ সাংবাদিক অনুপ চক্ৰৱৰ্তীৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছো যেন बताइए तो फिलहाल जो पुलिस की तहकीकात है तो किस दिशा में आगे बढ़ रही है और जो शूटर्स या फिर कॉन्ट्रैक्ट किलर्स की जो बात आ रही है सामने तो क्या है पुलिस ने क्या बताया है देखिए शुभेंदु अधिकारी को जो आत्मसमर्पण किए हैं उसका जो कल घटना हुआ था उसके बारे में पुलिस अभी छानबीन कर रही है पुलिस के खिलाफ में अभी बोला था पुलिस बहुत सारे आदमी को इसको पूछताछ किया था पर एक गाड़ी अटक किया था उसके बाद में पुलिस को फिर दिखा गया था जो बहुत सीसी कैमरा जो फुटेज पकड़ के अभी भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं पुलिस का कहना है जो घटना हुआ था बाइक से लेके 3 आदमी आया था फिर एक 4 चक्का गाड़ी था बाद में उसको जब मधुबनी नाम जो इलाका है एयरपोर्ट से 3
3 किलोमीटर दूर, उस टाइम में उसको फिर शूट आउट कर दिया। फिर उसका जो गाड़ी का चालक, गाड़ी का ड्राइवर है, उसको भी अब अस्पताल में भर्ती कर गया था, उसको पूछताछ करने के लिए किस तरह से कल एक घटना हुआ था। दूसरी बार और शुभेंदु अधिकारी का जो पीए था, जो चंद्रनाथ राउत, इसका ऊपर में जो घटना हुआ था, एक घटना कैसे हुआ था, और पीछे जो आदमी लोग आ रहे थे, एक और पीछे गाड़ी था, फिर उस गाड़ी पे आके बाइक में उठा के फिर गोली मार दिया गया था, फिर उसका मौत हो गया था। बहुत सारी गोली चला था उसका। ये मध्यमग्राम इलाके में पुलिस के खिलाफ में ये बहुत सीसी कैमरा। एक बात बताइए अनूप, या ये जो मिसक्रेंट्स थे या फिर असैलेंट्स थे तो कहाँ से आए थे? वो जो एक गाड़ी की बात सामने आ रही है थी, जिस गाड़ी ने पहले तो रास्ता रोकने की कोशिश की, उसके बाद एक मोटरसाइकिल में आए जो शूटर्स, तो सारे एक ही साथ आए थे या फिर गाड़ी वहां पे छोड़ के भागे हैं? देखिए, जब घटना हुआ था, जो शुभेंदु अधिकारी का आत्मसह चंद्रनाथ राउत जब आ रहा था एयरपोर्ट साइड के अंदर में, तो एक जगह सुनसान इलाका था, मध्यमग्राम का इलाका, पीछे से वो गाड़ी फॉलो कर रहा था। बाद में उस गाड़ी से 300 आदमी निकल के बाइक में आके उसको शूट आउट कर दिया था फिल्मी कायदा में। फिर उस बाइक लेके गली रास्ता से निकल गया था वो लोग को। फुटेज अभी भी पुलिस के पास है, पुलिस उस फुटेज लेके एक गाड़ी को अभी भी अटक किया था। गाड़ी का नंबर किस नंबर से है, कहाँ का गाड़ी है, ये देख के कौन आदमी था, अभी भी पुलिस पता चल रहा है। वो जो घटना हुआ कल रात में, जब रास्ते पे जब शुभेंदु अधिकारी का आत्मसह जा रहा था, पीछे में वो लोग एयरपोर्ट की तरफ से फॉलो कर रहा था। बाद में उसके ऊपर गोली किया था और उसको जो गाड़ी का जो ड्राइवर था उसको भी गोली लगा, जखम वहाँ के एक बेसरकारी जो अस्पताल है वहाँ पे अभी ट्रीटमेंट चल रहा है। कैसे हुआ था, बहुत सारे प्रत्यक्षदर्शी है, उसके साथ पुलिस बातचीत कर रहे हैं एवं पुलिस अधिकारी ने बहुत सारे जो फुटेज वहाँ पे कलेक्ट किया था। जो गाड़ी जा रहा था शुभेंदु अधिकारी का आत्मसह का पीछे फॉलो कर रहा था। बाद में जो सुनसान जो मध्यमग्राम का इलाका आया था, उस इलाका में देखा गया था जो गाड़ी से नामक जो बाइक के ऊपर से गोली चलाया था, फिर उसको मौत हो गया था। जब अस्पताल में लेकर गया था, बोला था पहले ही उसको मौत हुआ था क्योंकि शरीर में एकाधिक बुलेट इंजुरी था, उसलिए उसका मौत हो गया था। उसका जो गाड़ी का चालक है उसको भी गोली लगा था, एक बेसरकारी अस्पताल में अभी ट्रीटमेंट चल रहा है। एक ऐसे घटना हुआ था, इस घटना के पीछे में कौन कौन है अभी पुलिस छानबीन कर रहे हैं। पुलिस के खिलाफ कहना है जो आदमी आया था पहले से शाम की तरफ से उसको पीछा कर रहा था, जब उस रास्ते से शुभेंदु अधिकारी का पीए जा रहा था वो प्लान माफी की घटना हुआ था, ऐसे ही पुलिस का कहना है। मतलब जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जारी है, तो उसमें पाया गया है कि इस गाड़ी ने, जो व्हाइट कलर की गाड़ी थी, जिसका ये भी बताया जा रहा था कि नंबर प्लेट भी फेक है, तो वो काफी देर से पीछा कर रही थी। देखिए 3 किलोमीटर जो रास्ता है, उस रास्ता से उस गाड़ी में पीछे कर रहे थे। और जो नंबर प्लेट जो गाड़ी अभी पुलिस ने अटक किया था, वो गाड़ी अभी देख रहे हैं। जो गाड़ी जिसका नाम है उसका साथ पुलिस का बात हुआ था, वो बोला उसका गाड़ी सिलीगुड़ी इलाका का, उस आदमी बोला था उसका पास ही गाड़ी है। लेकिन ये गाड़ी का जो नंबर प्लेट बदल करके एक पूरा घटना घटाया था, ऐसे ही पुलिस का कहना है। अभी पुलिस बहुत सारे जगह में उस गाड़ी के सीसी कैमरा फुटेज लेके, जिस रास्ते पे जा रहा था वो लोग बाइक पे हेलमेट पहना हुआ के सारे फुटेज पुलिस अभी देख रहा है। कैसे घटना कल जब टाइम में घटा है, लोग सुनसान इलाका देख के मध्यमग्राम इलाका उस जगह पे गोली चलाया था, क्योंकि उसके पास से 3 किलोमीटर एयरपोर्ट कोलकाता एयरपोर्ट है, उस पीछे से फॉलो किया था। और जहाँ पे घटना घटा था उसको आगे है मध्यमग्राम थोड़ा 1 किलोमीटर, और इस सुनसान जाएगा पहले वो लोग रेकी किया था। बाद में वहाँ पे शुभेंदु अधिकारी को जो आत्मसह उसको पीछे करके वहीं पे गाड़ी रोका और वही गाड़ी के लोग बाइक में आके कि तो फायर किया था, और 16 राउंड फायर किया था, उसका मौत हो गया। गाड़ी का जो चालक है ड्राइवर, उसको भी अभी जख्म है। अनूप, क्या शुभेंदु अधिकारी इस घटना के टारगेट थे? मेन टारगेट क्या शुभेंदु अधिकारी थे? देखिए अभी वही पुलिस देख रहे हैं इस घटना का पीछे में किसका हाथ है, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी का जो आत्मसह जो 8 साल से वो आत्मसह का काम कर रहा था। फिर कल जो घटना घटा था, शुभेंदु अधिकारी की आदत उस घटना में टारगेट था, ये जानने के लिए पुलिस के साथ अभी बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन है, बहुत सारे ऑफिसर आया था। लेकिन जो बोल रहा है इस घटना के पीछे में कौन है अभी पता नहीं चला। लेकिन पुलिस सारे सब देख रहे हैं फुटेज देख के, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी का जो पीए आत्मसह उसके ऊपर गोली चलाया था, और ये जो पूरा
घटना घटा था प्लान मैपिंग किया था, पहले से एक घटना का एक रूट मैप किया था, बाद में वो रास्ते पे वो जाएगा वहां पे रेकी करके उसको मर्डर किया था। कल जो घटना घटा था बाद में शुभेंदु अधिकारी बीजेपी और एमएलए उस इलाका में आया था, इसका पीछे किसका हाथ है पुलिस को देखने के लिए कहा। पुलिस का डीजी वहां पे गया था, पूरा घटना पुलिस देख रहा है, बोल रहा है इसका पीछे में किसका हाथ है वही देख रहा है, इसका पीछे में। देखिए बीजेपी के नेताओं का अगर कहे तो सीधे सीधे उन्होंने जो एलिगेशंस लगाया है वो टीएमसी पर लगाया है, तो टीएमसी का कहना है कि सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। तो ये सही बात है, बीजेपी एमएलए और शुभेंदु अधिकारी सब कहा था इसका पीछे में टीएमसी का हाथ है, लेकिन टीएमसी का कहना है इसके बारे में जो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए किसका हाथ है, अगर टीएमसी कोई इसका हाथ है उसका शास्ति होना चाहिए ऐसे भी बोला था। लेकिन सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करने के लिए दावी मांगा था टीएमसी अधिकारी ने, लेकिन क्योंकि जो जिस घटना हुआ था जो बीजेपी सारे कार्यकर्ता था कल सारे कार्यकर्ताओं का कहना है जो घटना घटा था इसका पीछे में टीएमसी का है, क्योंकि दो दिन पहले चुनाव हुआ था, मतदान आया था, फिर भाजपा ने यहाँ पे बहुत सारे सीटें लेके यहाँ पे सरकार गठन करने वाला था। ऐसे आगे में देखा गया था शुभेंदु अधिकारी जो पीए आत्मसात घर जा रहा था एयरपोर्ट से मध्यमग्राम की तरफ से, वहीं पे उसके ऊपर गोली चलाया था और उसका मौत हो गया था। इसके पीछे में कैसा इसका हाथ है अभी पुलिस देख रहे हैं, लेकिन बीजेपी का कहना है इसका पीछे में टीएमसी का हाथ है, पूरा घटना के पीछे में टीएमसी का हाथ है। टीएमसी का कहना है ये घटना में टीएमसी का जो अगर कोई कार्यकर्ता जोक से मिलेगा तो उसको कठोर शास्ति होना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन सीबीआई इन्वेस्टिगेशन देना चाहिए, क्योंकि ये जो सारे घटना हुआ है इसका खिलाफ में क्या हुआ था, कल क्या हुआ था, कितना टाइम पे रेकी किया था, पूरा छानपान कर रहे हैं पुलिस की तरफ से, पूरा घटना क्या घटा अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। पुलिस बहुत सारे सीसी कैमरा फुटेज वहां से अटक लेके अभी देख रहे हैं गाड़ी कौन सा रास्ते पे आया था, कौन सा गाड़ी पे निकला था, कौन सा गाड़ी के गोली चलाने के बाद भाग गया वो लोग। एक और बात जानना चाहेंगे आपसे अनूप कि दो सेपरेटली, क्योंकि कई सामने आ रही है कि बाइक बॉन्ड थे जो अक्यूज्ड है या फिर जो शूटर्स थे वो बाइक पे आए थे, तो क्या वो बाइक लेकर ही पीछे आ रहे थे या फिर गाड़ी सेपरेटली आ रहा था गाड़ी, तो क्या था? देखिए शुभेंदु अधिकारी का जो आत्मसात पिए था वो जो रास्ते पे जा रहा था पहले ही पीछे से एक गाड़ी रेकी किया जा रहा था, बाद में पीछे देखा जाए बहुत 3-2 बाइक आया था, फिर वो जो गाड़ी में पीछे शुभेंदु अधिकारी को जो आत्मसात को फॉलो कर रहा था वो गाड़ी पे निकला, बाहर में आके पॉइंट ब्लैंक रेंज से फिल्मी कायदा में उसको गोली किया था, 16 राउंड गोली चला उधर, फिर उसको मौत हो गया था। पहले जो ड्राइवर पास में था उसको भी अभी जख्म हुआ है, अस्पताल में चिकित्साधीन है, लेकिन बाद में पता चला ये सारे घटना है बहुत सारे दूर से वो लोग रेकी कर रहा था। मध्यमग्राम जो इलाका है एयरपोर्ट से 3 किलोमीटर दूर वहां पे सुनसान जगह था, वहां पे ही उसको गोली किया था। ये सारे जो घटना हुआ था उसको पुलिस कर रहे, उसके इन्वेस्टिगेशन चल रहे, लेकिन जो घटना हुआ था पुलिस को कहना है ये जो बात कल जो घटना हुआ था सारे सीसी कैमरा फुटेज अभी पुलिस का पास है, देख रहे हैं जो गाड़ी अभी अटक हुआ था उसका गाड़ी का नंबर प्लेट भी फेक है बोल रहे हैं, क्योंकि उस नंबर पे जब पुलिस बात किया था सिलीगुड़ी इलाके का नंबर बोल रहा है, क्योंकि नंबर प्लेट डुप्लीकेट करके ये सारे घटना घटे है, परिकल्पना माफी के घटना घटता पुलिस ऐसे कर रहे हैं। पुलिस का बात कहना है इस पीछे में जिसका हाथ है पकड़ा जाएगा, गिरफ्तार हो जाएगा, क्योंकि ये जो घटना हुआ था सारे सीसी कैमरा फुटेज पुलिस का पास है, लेकिन कौन सा किस चीज के लिए उसको मर्डर किया था, खून किया था, अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन चला रहे हैं। जी अनूप, जाहिर सी बात है अमूमन जैसे कि हमें पता है कि वो निजी सहायक थे चंद्रनाथ रथ, तो वो शायद अमूमन वो रहते होंगे शुभेंदु अधिकारी के साथ ही ज्यादा से ज्यादा वक्त, तो उस समय जब घटना घटी तो कितनी देर तक वो शुभेंदु अधिकारी के साथ थे, या फिर क्या ये भी कहा जा सकता है जैसे कि आपने बताया कि टारगेट शुभेंदु अधिकारी अगर थे तो क्या उस गाड़ी में शुभेंदु अधिकारी हो भी सकते हैं, या फिर ऐसा कुछ मैसेज देने के लिए निजी सहायक को टारगेट किया गया? देखिए पुलिस का कहना है कोई मैसेज देने के लिए ऐसा टारगेट किया था, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी का जो पीए है आत्मसात है उसका खूब क्लोज है, लेकिन ये जो घटना घटा था कल उस रास्ते में वो जो जाएगा पहले से आतताई का पास ऐसा खबर था, जब शुभेंदु अधिकारी का आत्मसात उस रास्ते पे जा रहा था 3 किलोमीटर फॉलो करके बाद में देखा गया उसका ऊपर गोली चलाया है सुनसान जगह देख के, क्योंकि ये जो सारे घटना है तो प्लान में भी घटा हुआ है, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी को एक वार्ता देना वो लोग चाहते हैं ऐसे ही पुलिस का कहना है, इसलिए उसका ऊपर
इस तरह से गोली चलाया था, उसका मौत हो गया था। क्योंकि प्लान माफिक ये सारे जो काम हुआ था, ऐसे ही पुलिस का कहना है। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं, पुलिस सारे कुछ देख रहे हैं, पुलिस का ऐसे कहना है। बहुत सारे सीसी कैमरा फुटेज उन लोगों को मिला है, बाद में इन्वेस्टिगेशन करके कड़ी के कड़ी सजा देंगे उन लोगों को। और बहुत जितना जल्द हो सके ये पीछे में जितना सताई है, जितना दुष्कृति है, उसके खिलाफ पुलिस व्यवस्था लेगा, ऐसे ही कहना है। अनूप, ये जो अभी पोस्टमार्टम चल रहा है, तो 41 इयर्स के चंद्रनाथ रथ, उनका बताया जा रहा है कि उनका काफी एक अहम भूमिका थी जब भवानीपुर के इलेक्शंस में शुभेंदु अधिकारी वो विजय होकर आए। देखिए, भवानीपुर में जो इलेक्शन हुआ था, जो शुभेंदु अधिकारी जो पीए था चंद्रनाथ रथ, उसका ही उस जमींदारी था, वही सब कुछ शुभेंदु अधिकारी देख रहा था। बाद में जब शुभेंदु अधिकारी वहाँ पे चुनाव के बाद जीत गया, बाद में ऐसा घटना हुआ था। उसके लिए पुलिस इन्वेस्टिगेशन वो बात के लिए भी कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के कहना है सारे जो घटना घटा था क्योंकि प्लान माफिक हुआ था, इसका पीछे में टीएमसी का हाथ है। लेकिन अभी भी टीएमसी कह रहा है उसका पीछे टीएमसी का हाथ नहीं। अगर कोई टीएमसी कार्यकर्ता इसका पीछे है तो कड़ी से कड़ी सजा उसको मिलना चाहिए। और सीबीआई इन्वेस्टिगेशन उन लोग मांगा था, क्योंकि ये जो घटना घटा था शुभेंदु अधिकारी को आत्मसात के ऊपर में, जब भवानीपुर में चुनाव हुआ था, इस चुनाव में शुभेंदु अधिकारी का सब कुछ, जो शुभेंदु अधिकारी का पीए चंद्रनाथ रथ ही देख रहा था। आज चुनाव के बाद में उसको जो जीत आया था, उसका ही सब कुछ है। क्योंकि शुभेंदु अधिकारी जब नंदीग्राम में लड़ रहा था, तब बाद में पता चला शुभेंदु अधिकारी भवानीपुर में कैंडिडेट था। भवानीपुर का जो जाने सब घटना था, तो चुनाव के बाद में क्या होना चाहिए, ये सारे सब कुछ की वही देख रहा था। ऐसा जो घटना घटा था, बाद में पता चला शुभेंदु अधिकारी, जब उसको बाद खबर गया था, रात में ही शुभेंदु अधिकारी चला आया एवं बीजेपी कार्यकर्ता, विधायक, नया वाला विधायक सब आया था। और उसका कहना है इसके पीछे में टीएमसी का हाथ है। अभी टीएमसी कह रहे हैं इसका पीछे में टीएमसी का अभी भी हाथ नहीं है। अगर कोई कार्यकर्ता इसके पीछे में है तो उसको कड़ी के कड़ी सजा होना चाहिए, क्योंकि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन मांग रहे तृणमूल आदमी है। जी अनुप, धन्यवाद আমি সারি জানকাৰী দেনি কে লিয়ে। আৰু আমাৰ সাংবাদিক ইতিমধ্যে জনাইছে যে কেনেকৈ গোটেই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিলে। সেইডোখৰ অঞ্চল য'ত এয়াৰপৰ্টৰ পৰা বিমানবন্দৰৰ পৰা উভতি আহিছিলে, সেইডোখৰ অঞ্চল কিছু তাত জনশূন্য, সাধাৰণতে জনবহুল বুলি আমি যিখিনি জনাই আছিলোঁ, সেই বিশেষ ঠাইখিনি য'ত ঘটনাটো সংঘটিত কৰিলে জনশূন্য ঠাই, আৰু সেই ধৰণৰ ঠাই এডোখৰ বাছি লৈ আততায়ীয়ে গুলী চালনা কৰিছিলে। কিছু আৰু ভাষ্য আছে, আমি সেই ভাষ্যখিনি আমাৰ দৰ্শকৰ বাবে আগবঢ়াম। नहीं, देखिए, उनके पीए के ऊपर अटैक हुआ है, बड़े दुखजनक है, मौत भी हुई है। ये जो घटना हो रही है इसको थमना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, लेकिन अभी सत्ता अपने हाथ में आया नहीं है। कानून व्यवस्था या तो ममता बनर्जी के हाथ में, या तो चुनाव कमीशन के हाथ में, और पुलिस को इतना निकम्मा बना दिया था। पुलिस सब जानते हुए भी चुप करके बैठ जाता है। मैं कह रहा हूँ पुलिस को और कार्रवाई करनी चाहिए। बहुत सारा एंटी सोशल जो राजनीति में बहुत दिन से सक्रिय थे, उनको रोकना चाहिए। और अभी भी पुलिस हमारे पुराने कार्यकर्ताओं को हैरेसमेंट कर रही है। लड़ाई टीएमसी के दोनों गुट में हो रहा है, खून खराबा हो रहा है, और बीजेपी को जिम्मेदार बना करके हमको अभी भी अत्याचारित किया जा रहा है, पीड़ित किया जा रहा है। ये ठीक नहीं है। पुलिस को और खुले हाथ से निष्पक्ष होकर काम करना चाहिए। नहीं, गोली इस बार चुनाव को पहले प्रयास किया था, टीएमसी के गुंडों ने, सफल नहीं हो पाई। अब जबकि कोई सरकार नहीं है इसलिए उनको मौका मिला है, लेकिन पुलिस है, इसी पुलिस को पहले आगे जाके काम करना है, इसलिए वो अपना जो एक्टिविटी है उसको ठीक करे। तृणमूल कांग्रेस एक संतरासवादी दल, मैं पहले कहा था इस दल का पॉलिटिकल स्वीकृति बातिल करना चाहिए। पूरा गुंडा और समाज विरोधी और संतरासवादी आधारित एक पार्टी, इन्होंने बंगाल से सफाया हो गया, भवानीपुर से ममता बनर्जी सफाया हो गया, और अभी त्याग पत्र नहीं देंगे ऐसा नाटक शुरू किया। जब देखा कोई काम, कोई पदक्षेप, कोई रंग नहीं ला रहा है, तब इन्होंने परिकल्पित रूप से शुभेंदु अधिकारी का पीए को टारगेट बनाया, और टारगेट बना के जो खूनी लोगों से एक काम कराया। इसका ठीक ढंग से जांच हो रहा है। हमारा आशा है जिन लोग खूनी आए वो पकड़ा जाएगा, और एक खून तृणमूल कांग्रेस का आला कमांड से ही
एक खून का रणनीति तैयार हुआ था, सारे ब्लूप्रिंट तैयार हुआ था। और ऐसा जो पार्टी है जो घृण्य है, मानवता विरोधी है, सभ्यता विरोधी है, इस पार्टी का जो लोग इस घटना का साथ शामिल है, सबको गिरफ्तार करना चाहिए। कठिन से कठिन दंड देने का हम लोग मांग कर रहे हैं, लेकिन कोई इसमें बच नहीं सकता। আৰু কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম শাস্তি হ'ব লাগে আৰু বিচাৰ দাবী কৰিছে এই গোটেই ঘটনাৰ বিজেপিৰ ফালৰ পৰা স্পষ্ট অভিযোগ টিএমচিৰ বিৰুদ্ধে। আৰু এই মুহূৰ্তত শেহতীয়া ঘটনাই যিহেতু তোলপাৰ লগাইছে পশ্চিম বংগ কি হৈছিল আৰু ইয়াৰ এই ধৰণৰ ঘটনা কোন দিশে কি ধৰণৰ তাৎপৰ্য, CNN News 18ৰ সিনিয়ৰ এডিটৰ পল্লৱী ঘোষৰে বিশেষ ৰিপৰ্ট আমি আগবঢ়াম। Suppose there's a driver sitting this side, Chandranath was sitting on the other side, the bullet was fired from that side. So, whoever was firing it clearly knew where Chandranath was sitting and the driver's here. So what happens is that when you shoot at such a short range, it hits him, the target, and then of course the collateral damage is the driver. So the driver is going to be a very key witness in all of these issues, as are the other people who could have been accompanying him. So the details that we are putting out, and there's no doubt about it, that it was very clear that Chandranath was the target. There were people who were clearly following him, what we have been picking up by way of our CID sources also since morning. We've seen those officers on the ground. We saw the forensic team also on the ground. It was very clear that he possibly could have been trailed for a couple of days, that recce could have happened on the ground for a couple of days, and that is where the local help could come in. That's also a possibility which is being looked at, that were there people who were his enemies on the ground or who gave this and divulged his information about the routine and the route he took, because clearly possibly he took the same route, because we have been reporting from the ground, Christine, and we saw the manner in which you can reach his residence. One was of course from the spot where Kamalika is standing, it's just a straight drive in there, but the one I took, because that area has been cordoned off, is very convoluted. There are lanes and by lanes, so I'm sure they knew that this is the lane he'll take, and this lane is so narrow that you just have to put some kind of a vehicle or an obstruction there, and it will be very difficult for his vehicle to go across. So the details that we are putting out is, there's no doubt about it, and we're not going to talk about a larger conspiracy because this is in the realm of speculation and investigation going on, but certainly questions are going to be asked. I mean, why was he targeted? What was the enmity with him? What was the ultimate goal? Because he was clearly an influential and a powerful person also, and someone who was extremely close to Shubhendu Adhikari, as we all know. So these are the questions which come to mind, but as I just showed you, Christine, it was very clear that the target was clearly Chandranath, and the driver of course got hurt because the bullet hit from there. আৰু এই সামগ্ৰিকৰূপে তেওঁ জনাইছে যে কেনেকৈ সেই গাড়ীখনত এফালে আহি নামি টাৰ্গেট কৰা হৈছিল। আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিকগৰাকীয়ে ঘটনাস্থলীৰ পৰা তেওঁ কিছু আপডেট আমাক যিখিনি দিলে ইয়াৰ পূৰ্বে, তেওঁ জনাইছিল যে এখন গাড়ী আৰু খুব ঠেক ৰাস্তা এটা, আৰু সেইখিনি জনশূন্য, ইমান বেছি তাত মানুহ নাথাকে, যদিও বা গোটেই আন বাটচোৱাত মানুহৰ সমাগমৰ মাজেৰে হয়তো এই গাড়ীকেইখন পাৰ হৈছে, কিন্তু সেই 200 মিটাৰৰ কথা যি কোৱা হৈছে জনশূন্য থাকে আৰু সেইডোখৰ ঠাই হয়তো বাছি লৈছিল। এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে যে চন্দ্ৰনাথ ৰথ এইকেইটা দিনত নিৰ্বাচনী হয়তো কাম কাজত ব্যস্ত আছিল, বা হয়তো আন কালৰ দৰে যিহেতু নিৰ্বাচনী জয় কৰিলে বিজেপিয়ে শুভেন্দু অধিকাৰী বৃহৎ জয়, তাৰ পিছতে এইকেইটা দিনত হয়তো তেওঁ ব্যস্ততাপূৰ্ণ সূচী আছিল, কিন্তু হয়তো তেওঁৰ কথা কোনখিনি সময়ত ওলায়, কোনখিনি সময়ত সোমায় বা ক'লৈ গৈছে, হয়তো তেওঁৰ পিছ লৈ আছিলে, হয়তো দুৰ্বৃত্তই তেওঁৰ কথা গোটেইখিনি গম পাইছিলে আৰু কোনে খবৰ দিছিল, এই ধৰণৰ কথা বতৰাবোৰ আহিছে, প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে, আৰু ডাঙৰ ষড়যন্ত্ৰ নেকি এয়া, স্বাভাৱিকতে ডাঙৰ প্ৰশ্ন। আন কিছু ভাষ্য আছে, আমি সেয়া আগবঢ়াম। और इस बार पावर से जाने के बाद उनका गुस्सा, उनका प्रतिहिंसा, उनका फ्रस्ट्रेशन, यही सब बाहर आ रहा है। और सबसे दुख की बात यह है कि उन्होंने जिनको टारगेट किया एकदम नॉन पॉलिटिकल, क्योंकि चंद्रो का यही उसका दोष था कि भवानीपुर के चुनाव में बहुत वो काम किया था शुभेंदु दा के लिए, और भवानीपुर से ममता बनर्जी हारी। इसी गुस्से में क्या ऐसा हुआ है, ये सवाल तो उठता है, क्योंकि जो सूत्रों से हम लोग पता चलता है कि बहुत ठंडे दिमाग से ये प्लान किया हुआ मर्डर है।
पॉइंट ब्लैंक रेंज से जो शार्प शूटर थे, प्रोफेशनल शार्प शूटर से ये निश्चित किया गया कि चंद्र किसी भी हालत पे वो जिंदा नहीं लौट पाए। इसीलिए गाड़ी रोक के उसके गाड़ी के सामने आके लगातार गोली, ये इतना दरिंदगी हम लोग तृणमूल जमाने में देखे थे, तृणमूल जाते वक्त भी देख रहे हैं। আৰু এই গোটেইখিনি যে তৃণমূল থকাৰ সময়ছোৱাটো কি ধৰণৰ ঘটনাৰ আজি আছিল আৰু তাৰ পিছত তৃণমূল যিহেতু এতিয়া বিদায় লৈছে তাৰ পিছতো কি ধৰণৰ ঘটনা, এই ধৰণৰ প্ৰসংগ বিজেপিয়ে উত্থাপন কৰিছে, প্ৰশ্ন বহু উত্থাপন হৈছে। কিন্তু টিএমচিৰ স্পষ্ট কথা, এই ধৰণৰ ঘটনাৰ স্থান নাই, এনেকুৱা হত্যাকাণ্ডৰ CBI তদন্ত বিচাৰিছে টিএমচিয়ে। এই মুহূৰ্তত আন এক বিশেষ ৰিপৰ্ট, আমি চন্দ্ৰনাথ ৰথৰ ঘৰৰ সন্মুখত তাত কি ধৰণে সেই ঘটনা ঘটাইছিল দুৰ্বৃত্তই, যদিওবা তাত আৰক্ষী বৰ্তমান উপস্থিত আছে। एसोसिएट एडिटर कमलिका सेनगुप्तार एक विशेष रिपोर्ट आगबढ़ाम। जहाँ पे हुआ है घटना उसके ऊपर में सर एक फ्लैट है, वहीं पे एक महिला देखी थी कि वो बाइक वाला वहाँ पे आधा घंटा 40 मिनट से हेलमेट पहन के खड़ा था। अच्छा, इसका मतलब वो वेट कर रहा था। शायद वेट कर रहा है। तो आप लोगों के यहाँ पे ऐसा घटना कभी हुआ है? ना मैम, पहले कभी नहीं हुआ है। मध्यग्राम ये पूरा शांतो सुष्ट इलाका है, कभी ऐसा कुछ नहीं, ये पहला बार है। सबके मन में थोड़ा आतंक है। তো বলিয়েছিল যে 4 তারিখের পরে দিল্লির কোনো ভাব রক্ষা করতে পারবে না, সেটাই তারা দেখিয়ে দিল। আমি আজকে নতুন সরকার যে গঠন করবে তার কাছে জানাবো যে আমার ছেলের এই মৃত্যুর জন্য শাস্তিটুকু হয়। আমার ছেলে যদি অ্যাক্সিডেন্টে কোনো অঘটন ঘটতো আমার মনে হয় এত কষ্ট হতো না। তাকে যেভাবে কষ্ট দিয়ে এতটাইরা মারলো, এটা পুরো তৃণমূলেরই সাজানো গল্প। কেন শুভেন্দু বাবু মমতাকে হারিয়েছে, যার জন্য আমার মনে হয় এই প্রতিশোধ। আৰু সেয়া মাতৃৰ যি মন্তব্য যে কিমান কষ্ট দি হত্যা কৰা হৈছে। চন্দ্ৰনাথ ৰথ 41 বছৰীয়া চন্দ্ৰনাথ ৰথ, তেওঁৰ বিগত প্ৰায় 8টামান বছৰ শুভেন্দু অধিকাৰীৰ একেবাৰে ঘনিষ্ঠতম ব্যক্তিৰ মাজত অন্যতম। ইনাৰ চাৰ্কেল বুলি যদি কোৱা হয়, সেই চাৰ্কেলৰ ভিতৰৰ এগৰাকী ব্যক্তি আছিল শুভেন্দু অধিকাৰী। যিধৰণে শুভেন্দু অধিকাৰী তেওঁ দীঘলীয়া ৰাজনৈতিক কেৰিয়াৰ, চন্দ্ৰনাথ ৰথ বিগত বহু বছৰ ধৰি, আৰু তেওঁ ইয়াৰ পূৰ্বে তেওঁ ভাৰতীয় বায়ু সেনাত সেৱা আগবঢ়াইছিল। তাৰ পৰা তেওঁ চেচাই তেওঁ অৱসৰ ল'লে আৰু তাৰপিছত তেওঁ শুভেন্দু অধিকাৰীৰ সৈতে জড়িত হৈ আছিল। ভৱানীপুৰেই কওক বা আন ঠাইতেই কওক, শুভেন্দু অধিকাৰীৰ বিজয়ৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা, তেওঁৰ কি ধৰণৰ নিৰ্বাচনী ষ্ট্ৰেটেজি হ'ব বা কি ধৰণে নিৰ্বাচনী ষ্ট্ৰেটেজি আগবঢ়াই লৈ যাব, এই ধৰণৰ কথা বতৰাত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা আছিল। কিন্তু ৰাজনৈতিকভাৱে পোনপটীয়াকৈ তেওঁ জড়িত হৈ নাছিল। এতিয়া ব্যক্তিগত সহায়কগৰাকী কেনেকৈ হত্যা কৰা হৈছে, ক'ৰবাত বিশেষ বাৰ্তা দিবলৈ বিচৰা হ'ল নেকি শুভেন্দু অধিকাৰীক টাৰ্গেট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছিল নেকি, এই ধৰণৰ প্ৰশ্নবোৰ উঠিছে। আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে। কিন্তু সেই গলিটো 200 মিটাৰমান নিলগত য'ত ঘটনা সংঘটিত কৰিছিল, তাত কি দেখিছিল ওচৰ চুবুৰীয়াই, কিছু ভাষ্য আমি সেই প্ৰতিবেদন পুনৰবাৰ আগবঢ়াম। जहाँ पे हुआ है घटना उसके ऊपर में सर एक फ्लैट है, वहीं पे एक महिला देखी थी कि वो बाइक वाला वहाँ पे आधा घंटा 40 मिनट से हेलमेट पहन के खड़ा था। अच्छा, इसका मतलब वो वेट कर रहा था। शायद वेट कर रहा है। तो आप लोगों के यहाँ पे ऐसा घटना कभी हुआ है? ना मैम, पहले कभी नहीं हुआ है। मध्यग्राम ये पूरा शांतो सुष्ट इलाका है, कभी ऐसा कुछ नहीं, ये पहला बार है। सबके मन में थोड़ा आतंक है इस घटना के लेकर। पर ये बाइक यहाँ पे खड़ा था, ये आप किससे सुने? वो जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है उसके ऊपर में एक फ्लैट है, वहीं पे एक भद्रो महिला थी। जब पुलिस आया था, कारतूस वगैरह वो लोग सर्च कर रहा था, तो उसी टाइम पता चला जी ऐसा हुआ। ठीक है, आपका नाम? मेरा नाम अमित साहब। तो this is what he is saying, that he came to know, he is a local resident. Chandra used to stay here. He has that assembly sticker, car. So he was not a person who was known to a lot of person. This is his house. But the question which he raised is that one woman who stays there, that woman has told him that this bike was waiting for more than half an hour there. This is also proves he is also person who is from the local area, and he has heard from that this eyewitness who said that the bike was waiting there for more than half an hour. This is the very important point.
इसका इन्वेस्टिगेशन हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है। इस क्राइम में जो गाड़ी 4 व्हीलर जो यूज़ हुई थी उसको हम लोगों ने सीज़ किया हुआ है, लेकिन ये पता चल रहा है कि इस गाड़ी को जो नंबर प्लेट है वो फॉल्स है, उसको टेम्पर किया गया है। हम लोगों को स्पॉट से लाइव राउंड और फायर्ड कार्ट्रिजेज मिली हुई है। बाकी वहाँ पर जो आई विटनेस थे और जो एविडेंस है उनको हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन में आगे बढ़ना है। हम लोगों ने केस का इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया हुआ है। जो व्हीकल जो 4 व्हीलर उस क्राइम में इस्तेमाल हुआ था उसको हम लोगों ने सीज किया हुआ है, लेकिन जो पता चल रहा है इन्वेस्टिगेशन में गाड़ी का नंबर टेम्पर्ड किया हुआ है और हम लोगों ने वहाँ पर फायर्ड कार्ट्रिजेज और लाइव राउंड जो इस्तेमाल करे गए थे उनको वहाँ से सीज किया है। बाकी हम लोग कौन लोग थे, कैसे लोग थे, बहुत सारे CCTV फुटेजेस लोकल इंक्वायरी करके लोकल विटनेसेस को देख करके हम लोग इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। আৰু আজি চন্দ্ৰনাথ ৰথৰ মৃতদেহৰ হ'ব মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা। বাৰাছাত চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়তে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা সম্পন্ন কৰা হ'ব। উত্তৰ 24 পৰগনাস্থিত চিকিৎসালয়খনতে তেওঁৰ নিথৰ দেহ ৰখা হৈছে। দিনৰ 11 বজাত মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা কৰাৰ কথা। ঘটনাস্থলীত CCTV ফুটেজ পাইছে আৰক্ষীয়ে, সেয়া সংগ্ৰহ কৰিছে আৰু বৰ্তমান আৰক্ষী নামি পৰিছে অভিযানত দুৰ্বৃত্তক বিচাৰি। দুষ্কৃতিকাৰীৰ সন্ধানত আৰক্ষীয়ে ভিন্ন ঠাইত ইতিমধ্যে অভিযান চলাইছে। বিশেষকৈ সেই বাহনখন যিখন বাহনত দুৰ্বৃত্ত উঠি আহিছিল আৰু বাকী বাইক কেইখন কলৈ পলায়ন কৰিলে, গুলিয়াই পলায়ন কৰিছিল সেই বাইকত দুৰ্বৃত্তৰ দলকেইটাই। আৰু দুৰ্বৃত্ত কিমানজনীয়া দুৰ্বৃত্ত আছিল, যিহেতু বাহন তাত এৰি পলায়ন কৰিছে, সেই বাহনখনৰ নাম্বাৰ প্লেট পাইছে। সেই বাহনখন কিছু আঁতৰৰ প্ৰায় 3 কিলোমিটাৰমান আঁতৰতো দেখা গৈছিলে। বাহনখনে হয়তো অনুসৰণ কৰিছিল চন্দ্ৰনাথ ৰথক। আৰু চন্দ্ৰনাথ ৰথক হত্যা কৰা এই যি ঘটনা স্বাভাৱিকতে প্ৰশ্ন ই বহু উত্থাপন কৰিছে। ये प्री प्लान मर्डर है, ये हम लोग का बात नहीं है, पुलिस का DGP का बात है। 2-3 दिन रेकी करके फुल्ली प्री प्लान मर्डर, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन चालू किया। स्टेट का सीनियर पुलिस ऑफिसर लोग आया, हम लोग बहुत पेनफुल हार्ट में ये जो मर्मांतिक हादसा हुआ, कुछ ना कुछ क्लू उनको मिला है, पुलिस ही कार्रवाई करेगा। DGP देख रहा है। हमारे IPS हमारी लीडर भारती गिस जी ने पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन और हो सकता है वो उसको बारे में जानकारी इकट्ठा करेगा। আৰু চন্দ্ৰনাথ ৰথৰ হত্যাকাণ্ডক তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ তীব্ৰ গৰিহণা। দোষী শীঘ্ৰে চিনাক্ত কৰি বিহিত ব্যৱস্থা ল'বলৈ দাবী তুলিছে TMCয়ে। লোমহৰ্ষক হত্যাকাণ্ডৰ CBI তদন্তৰ দাবী তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ। বিজেপি সমৰ্থকে হিংসাত্মক ঘটনা সংঘটিত কৰাৰ অভিযোগ তুলিছে। ए पॉलिटिकल मोटिवेटेड मर्डर। पिछले 2 महीना तक 1.5 महीना तक चंद्रोदा जो काम किया और नंदीग्राम में और भवानीपुर में और पराजित होने के बाद ये शासक दल का आक्रोश वो मिटाने के लिए ये हत्या किया और टारगेट मर्डर। गाड़ी रुकने के बाद एक गोली मिस भी नहीं हुआ। ये परिकल्पित मर्डर, प्लानेड मर्डर। इसके बाद जो तदंत होगा, शुभेंदु अधिकारी छाड़ने वाला आदमी नहीं, वो 2-3 बार वो CM को डिफीट किया। इसीलिए जो होगा अकॉर्डिंग लॉ वही होगा। ये जो जिस इलाके में हत्या हुई है इसके ठीक आगे बांग्लादेश का बॉर्डर है। ये बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है ये कहीं ना कहीं, और ये कालीघाट से पूरी कॉन्स्पिरेसी की गई है। इसमें कुछ बड़े बड़े लोग भी इन्वॉल्व हैं। बड़ी जांच होगी और ये हादसा थमा नहीं है, अभी समझ लें आप। कुछ और भी भवानीपुर के लोगों के ऊपर में, क्योंकि ममता बनर्जी मानसिक रूप से कंप्लीटली अपने आप को कोलैप्स कर चुकी हैं। सोडियम पोटेशियम उनका कम हो चुका है, मानसिक रोगी हो गई हैं और वो किसी को भी कुछ भी कर सकती है। बिल्कुल रिवेंज कर सकते हैं, इसको कुछ भी कहा जा सकता है। और ये पूरा का पूरा षड्यंत्र से ये हत्या हुई है। अपराधी आप देखेंगे जब जांच पड़ताल होगी, जैसे अभी सोना के DGP साहब और इनको कुछ क्लू मिला है। इसके तार देखिएगा, कालीघाट से जुड़ेगा, मटियाबिरी से जुड़ेगा, तपसिया से जुड़ेगा, राजा बाजार से जुड़ेगा, खिदिरपुर से जुड़ेगा। ये निश्चित तौर पे तमाम जांचों में आएगी, क्योंकि ये पूरी प्लान कर रहे थे ये लोग कि कोई ऐसा एक बड़ा हादसा करे। देखिए
बिल्कुल नहीं थे, क्योंकि मैं तो पूरी इलेक्शन कोऑर्डिनेट कर रहा था। हम लोग का ऑफिशियल जो भी काम थे, अगर शुभेंदु दा से हम लोग की बातचीत नहीं हो पा रही थी तो हम लोग कोई भी चीज बोलते थे तो सारा का सारा, चाहे चुनाव प्रचार का मामला हो, ऑफिशियल कोई वर्क हो, इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड कोई मामला हो, विधानसभा से रिलेटेड कोई मामला हो, फोर्स का कोई मामला हो, वो सारे चीज को जिम्मेदारी चंद्रदा के पास था। वो नॉन ऑफिशियल, नॉन पॉलिटिकल लोग थे, ऑफिशियल लोग थे वो। और इन लोगों को ये मालूम था कि इस हार में कहीं ना कहीं इनकी भी भूमिका बैक साइड से था, तो ये अपनी हार को नहीं बचाने के चक्कर में एक बलि का मोहरा बना के उनकी हत्या किया है। देखिए भाई, अभिषेक बनर्जी ने हत्या करवाई है, अभिषेक बनर्जी ने हत्या करवाई है और वो एक मैसेज देना चाहता है कि हम सरकार में भले न हो लेकिन हम तुम्हारे ऊपर भारी हैं। लेकिन वो मूर्ख है, वो हम लोग पर भारी नहीं, इसका जवाब मिलेगा। আমি চাইছি দোষীরা শাস্তি পাক। কি শাস্তি চাই? আমিও একজন মা, আমি চাইবো না তাদের ফাঁসি হোক, কিন্তু যাবজ্জীবন কারাদণ্ড চাইছি। আর চাইছি যে আমরা ভারতীয় জনতা পার্টি করি বলে আমরা আজকে ক্ষমতায় আসার জন্য আমাদের সভাপতি বিরোধী দলনেতা যখন বলছেন সুশৃঙ্খলভাবে থাকতে, তখন শাসক দলের যারা গরম গরম বক্তব্য দিয়েছিল যে 4 তারিখের পরে দিল্লির কোনো ভাব রক্ষা করতে পারবে না, সেটাই তারা দেখিয়ে দিল। আমি আজকে নতুন সরকার যে গঠন করবে তার কাছে জানাবো যে আমার ছেলের এই মৃত্যুর যেন শাস্তিটুকু হয়। আমার ছেলে যদি অ্যাক্সিডেন্টে কোনো অঘটন ঘটতো, আমার মনে হয় এত কষ্ট হতো না। তাকে যেভাবে কষ্ট দিয়ে আততায়ীরা মারলো, এটা পুরো তৃণমূলেরই সাজানো গল্প। আৰু পুনৰবাৰ আমি পশ্চিমবংগৰ সেই ঘটনাটোৰ সবিশেষ আপোনালোকক জনাম। বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকাৰীৰ ব্যক্তিগত সহায়ক চন্দ্ৰনাথ ৰথক যি ধৰণে গুলীয়াই হত্যা কৰা হৈছে, তেওঁ হয়তো বহু পূৰ্বৰে পৰা অনুসৰণ কৰি আছিল আৰু এইখিনি সময়ত আমি গম পাইছোঁ যে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। আৰক্ষীৰ দল পুনৰবাৰ উপস্থিত হৈছে, উচ্চ পদস্থ আৰক্ষী বিষয়া পুনৰবাৰ ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে, য'ত খালী কাৰ্ট্ৰিজ পাইছে, কালি নিশাই তেওঁলোকে উদ্ধাৰ কৰিছিলে। আৰক্ষীয়ে বৰ্তমান সেই স্থান গিজাই আছে। আৰক্ষী, নিৰাপত্তা আৰক্ষী যথেষ্টখিনি মোতায়েন কৰি থোৱা হৈছে। আৰক্ষীৰ তদন্ত ক্ষীপ্ৰগতিত আগবাঢ়িছে। পশ্চিমবংগৰ মধ্যম গ্ৰামৰ বাৰাছাত বুধবাৰে নিশা প্ৰায় 10ৰ পৰা 10:20 মিনিটৰ ভিতৰত যিটো ঘটনা ঘটিল, সমগ্ৰ পশ্চিমবংগ জোকাৰি গৈছে। এই ঘটনাৰ TMCয়ে দাবী কৰিছে CBI তদন্ত, দুৰ্বৃত্তক বিচাৰি উলিয়াব লাগে, এই দাবী TMC। বিজেপিয়ে কিন্তু পোনপটীয়াকৈ এই ঘটনাৰ বাবে জগৰীয়া কৰিছে TMC। কিন্তু দুৰ্বৃত্ত কোন, কি ব্যক্তিগত আখেজ আছিল, শত্ৰুতা ব্যক্তিগত আছিল নে আন কি ঘটনা, মুঠৰ ওপৰত এই মুহূৰ্তত চিকিৎসালয়খনত, তাত স্থানীয় চিকিৎসালয়ত তেওঁৰ নিথৰ দেহ ৰখা হৈছে। চন্দ্ৰনাথ ৰথ তেওঁ বন্ধুৰ সৈতে আছিল। তেওঁ বিমানবন্দৰৰ পৰা উভতি আহিছিল ঘৰলৈ পুৱাৰ ঠিক আগমুহূৰ্তত, অৰ্থাৎ ঘৰ পাওঁ পাওঁ হওঁতেই প্ৰায় 200 মিটাৰমান নিলগতেই এডোখৰ এনেকুৱা ঠাই য'ত খুব ঠেক গলি, তাত এখন গাড়ীৰে আগভেটি ধৰা হ'ল তেওঁৰ বাহনখন, তেওঁৰ স্কৰ্পিঅ' বাহনখন। আৰু সেই বগা বাহনখন, যিখন বাহনে আগভেটি ধৰিছিল, তাতেই হয়তো পৰিকল্পনাৰে সেইধৰণে আগভেটি ধৰি দেখাত যেন এক প্ৰকাৰ এখন চিনেমা, হয়তো চিনেমাত তেনেকুৱা দৃশ্য দেখে, কিন্তু এয়া বাস্তৱত ৰূপায়িত হ'ল, বাস্তৱত পৰিণত হ'ল পশ্চিমবংগত। আৰু কলকাতাৰ পৰা নিলগত যি ঘটনা ঘটিল, আৰু সীমান্তৰ পৰা বৰ বেছি দূৰত নহয় এই স্থান, আৰু তাত এনেকৈ এগৰাকী লোকক, আৰু তেওঁ খুব শুভেন্দু অধিকাৰী, তেওঁ এজন ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি, সেয়া তেওঁ পৰিচিত, সেইধৰণে তেওঁক তেনেকৈ টাৰ্গেট কৰা ঘটনাটোৱে, চন্দ্ৰনাথ ৰথক হত্যা কৰা ঘটনাটোৱে কিন্তু ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে, বহু প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে। বৰ্তমান যথেষ্ট সংখ্যক আৰক্ষী মোতায়েন কৰা হৈছে। পশ্চিমবংগত নিৰ্বাচনোত্তৰ এই হিংসা নেকি, এই ধৰণৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে। শুভেন্দু অধিকাৰী সেইখন বাহনত সৌভাগ্যক্ৰমে নাছিল, কিন্তু হয়তো শুভেন্দু অধিকাৰীও টাৰ্গেট হ'ব পাৰে। আৰক্ষীয়ে এই দিশতো তদন্ত আগবঢ়াই লৈ গৈছে। শুভেন্দু অধিকাৰীক টাৰ্গেট কৰিবলৈ বিচৰা হৈছিল নেকি? तो उस समय कुछ बाजी फोड़ने का आवाज आया, तो हमने ध्यान नहीं दिया। हमने जीता है बंगाल में, हम भाजपा कार्यकर्ता हूँ, तो हमने जीता है, बाजी तो फटता ही रहता है। तो अचानक एक आदमी जाते जाते बोला 2 आदमी को गोली मार दिया गया, 2 आदमी को गोली मार दिया गया, देखो। तो हमने बोला कहाँ पर, दिखा दिया
इधर कार खड़ा था। तो हमने सुनकर जल्दी से दौड़ के आया, आके देखा स्कॉर्पियो को ब्लॉक किया है एक ऑल्टो कार, और स्कॉर्पियो के अंदर है एक ड्राइवर के सीट के पर बैठकर एक रो रहा था, और वो दरवाजा खोलने का वो डर रहा था खोलने का। तो हमने बोला तुम डरो मत, दरवाजा खोलो। दरवाजा खोल दिया। खोलने के बाद देखा एक सामने का सीट में पड़ा है और एक पीछे के सीट में पड़ा है। तो हमने उठाने की कोशिश किया तो उठा नहीं पाया, लेकिन पता चल गया जो वो तब भी जिंदा थे। तो हमने बोला अब भी जिंदा है, इनको प्राथमिकता है हॉस्पिटल, तुम जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाओ, हम पुलिस देखता हूँ। तो हॉस्पिटल कार घुमा के लेके गया। हमने पुलिस को बुलाया, 5 से 10 मिनट के अंदर पुलिस आ गया। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन चालू हुआ। तो ऐसा वैगन आर में जो अपराधी थे वैगन आर में आए थे, तो ऑल्टो में लगता है, ऑल्टो में आए थे। ऑल्टो का नंबर नहीं है, और स्कॉर्पियो को ब्लॉक किया हुआ था और वो छोड़ के चले गए। लगता है वो ऑल्टो में आके ब्लॉक करके उससे उतर कर गोली मार दिया। उसके बाद पहले से ही रेकी किया था और मोटरसाइकिल में भाग गया, क्योंकि इस इलाका में भागने के लिए सबसे आसान गली गली से भागना। और स्कॉर्पियो के अंदर ऑल्टो में कोई नहीं था। स्कॉर्पियो के अंदर एक आदमी ड्राइवर के सीट में बैठ के कार रो रहा था और 2 आदमी पीछे बैठ रहा था। 2 आदमी पीछे बैठा था ना, वो इंजर होकर पड़ा है। तो दरवाजा खोलने के बाद देखा, तो हमने बोला जे शकल दिखाओ, कैसे पहचानता हूँ कि नहीं। तो उन्होंने उठाने की कोशिश किया, उठा नहीं पाया, लेकिन वो जो जिंदा है हमको पता चल गया। तो हमने बोला अभी तक जब जिंदा है तब पहले प्राथमिकता है, तुमको हॉस्पिटल लेके जल्दी से जाओ, हम पुलिस बुलाते हैं। तो हॉस्पिटल लेके गया। कौन लेकर गया इस कार को? ड्राइवर स्कॉर्पियो के ड्राइवर के सीट में जो बैठे थे वही ड्राइव करके ले गया। और हमने पुलिस मध्यमग्राम PS पर फोन किया। 5 से 10 मिनट के अंदर पुलिस आ गया। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन। आपको पता था ये चंद्रनाथ? पुलिस जब फोन करके कंफर्म किया तब पता चला। और यहाँ पे ऐसा होता है, आप बीजेपी के कार्यकर्ता, पता है? 2012 के बाद हुआ नहीं, 2012 के बाद 14 साल बाद ऐसा हुआ। आपका नाम? मेरा नाम सुशांत सरकार। Sushant Sarkar, there he was talking to you. He said that he's clearly described the incident. Now, what happened? He was here last night when somebody was shouting. He came here, then he saw at that place there was a Scorpio and the car was there. The white car was in front, and that point of time he saw that 2 people injured in the car. One of them was almost dead. He fell, and the other person was injured. Then he said to the person who was sitting in the driver that you go to the hospital. I will call the police. Then he called the police, and the police came and the investigation started. So this is another eyewitness who speaks to News 18. This is Kamalika Sengupta with Anshuman Roy reporting for CNN News 18 from Madhyamgram. আৰু ইতিমধ্যে সেয়া তাত থকা উপস্থিত থকা প্ৰত্যক্ষদৰ্শী সেইগৰাকী ব্যক্তিয়ে গোটেই ঘটনাৰ বিৱৰণ দাঙি ধৰিছে। এখন বগা ৰঙৰ অল্টো বাহন বুলি তেওঁ কৈছে যে অল্টোৱে হ'ব। অল্টো বাহনখন স্কৰ্পিঅ'খনৰ ঠিক সন্মুখত, অৰ্থাৎ অল্টো বাহনখন হয়তো তাতেই উঠি আহিছিল, কিন্তু পলাল কেনেকৈ আৰু এই অঞ্চলৰ পৰা পলাবলৈ হ'লে গলিয়ে গলিয়ে পলাব লাগিব, সেইখিনি কথা বিজেপি কৰ্মীগৰাকীয়ে জনাইছে। তেওঁ অৱশ্যে কৈছে যে তেওঁ যি দেখিছিল, এজনে দৰ্জাখন খুলিব পৰা নাছিল, তেওঁ ভীতিগ্ৰস্ত হৈ আছিল, গুলী চলিছে, এজন পিছফালৰ আসনত আছে আৰু লগতে সন্মুখৰ বাওঁফালে থকা চালকৰ বাওঁহাতে থকা আসনত বহি থকা ব্যক্তিগৰাকী তেজেৰে লুটুৰি পুটুৰি, আৰু তেওঁ তাত কৈছে যে সেই ব্যক্তিগৰাকী তেওঁ গুলীবিদ্ধ হৈছিল। তেওঁ ততাতৈয়াকৈ চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল। আৰক্ষী খবৰ দিছিলে, আৰক্ষীয়ে 5-10 মিনিটৰ ভিতৰতে আৰক্ষী আহি উপস্থিত হৈছিলহি। লোকগৰাকী কিন্তু তাৰপিছত চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱাৰ সময়ছোৱাত বা চিকিৎসালয়ত লৈ গৈ পোৱাৰ ঠিক পিছতেই কিন্তু চিকিৎসকে মৃত ঘোষণা কৰিছিল, অৰ্থাৎ মুহূৰ্ততে ঢলি পৰিছিল। আৰু এই যিখন বাহনখনৰ আমি দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ, এখন বাহন WB74 এই ধৰণৰ বাহনখন, এই বাহনখন তাত পোৱা গৈছে আৰু এই বাহনখনেৰে আগভেটি ধৰা হৈছিল নেকি, নে এই বাহনখনতো উঠি আহিছিল দুৰ্বৃত্ত।
যদি দুৰ্বৃত্ত বাহনত উঠি আহিছিল, বাইক আগৰে পৰা সাজু কৰি ৰাখিছিল নেকি, বাইক তাত থৈয়ে গৈছিল নেকি, তেনেহ'লে হয়তো বহু দিনৰে পৰা অনুসৰণ কৰি আছিল নেকি চন্দ্ৰনাথ ৰথক এনেকৈ টাৰ্গেট কৰিবলৈ সময় বিচাৰি আছিল নেকি, বা সঠিক সেই ক্ষণটো বিচাৰি আছিল নেকি? প্ৰশ্ন এতিয়া নানানটা উত্থাপন হৈছে। যিখন বাহনৰ কথা আমি কৈছোঁ, সেই বাহনখন বৰ্তমানেও তাত দেখা গৈছে। সেই বাহনখনৰ নাম্বাৰ প্লেট কিমান শুদ্ধ, কিছু কথা পোহৰলৈ আহিছিল যে নাম্বাৰ প্লেট ৰেজিষ্টাৰ কৰা হৈছে, পঞ্জীয়ন কৰা আছে শিলিগুৰিত। অৱশ্যে শিলিগুৰিৰ যিগৰাকী ব্যক্তিৰ নামত পঞ্জীয়ন হৈ আছে বাহনখন, সেই বাহনখন সেইগৰাকী ব্যক্তিৰ লগতে বাহনখন নিজৰ লগতে আছে বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰিছে। তেনেহ'লে এইখন বাহন কাৰ, বা এইখন বাহনৰ নম্বৰ প্লেট ভুৱা নেকি? স্বাভাৱিক প্ৰশ্ন। কিন্তু বাইক আগতে সাজু কৰি ৰাখিছিল নেকি? দুৰ্বৃত্ত কিমানজনীয়া দুৰ্বৃত্তৰ দল আহিছিল, আৰু গাড়ী বা বাইক এই ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰালৈ লক্ষ্য কৰি বা যিমানকেইটা দুৰ্বৃত্ত নামি গুলিয়াইছিল, তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত কিন্তু নিঃসন্দেহে এয়া হয়তো বহুজনীয়া এটা দলৰ কাম বুলি ক'ব পাৰি। আৰু মুহূৰ্ততে বাইক লৈ গাড়ীখন তাতেই এৰি বাইক লৈ পলায়ন কৰিছিল দুৰ্বৃত্তই। আমি চাইছি দোষীরা শাস্তি পাক। কি শাস্তি চাই? আমিও একজন মা, আমি চাইবো না তাদের ফাঁসি হোক, কিন্তু যাবজ্জীবন কারাদণ্ড চাইছি। আর চাইছি যে আমরা ভারতীয় জনতা পার্টি করি বলে আমরা আজকে ক্ষমতায় আসার জন্য আমাদের সভাপতি বিরোধী দলনেতা যখন বলছেন সুশৃঙ্খল ভাবে থাকতে, তখন শাসক দলের যারা গরম গরম বক্তব্য দিয়েছিল যে 4 তারিখের পরে দিল্লির কোনো ভাব রক্ষা করতে পারবে না, সেটাই তারা দেখিয়ে দিল। আমি আজকে নতুন সরকার যে গঠন করবে তার কাছে জানাবো যে আমার ছেলের এই মৃত্যুর জন্য শাস্তিটুকু হয়। আমার ছেলে যদি অ্যাক্সিডেন্টে কোনো অঘটন ঘটতো, আমার মনে হয় এত কষ্ট হতো না। তাকে যেভাবে কষ্ট দিয়ে এতটাইরা মারলো, তা পুরো তৃণমূলেরই সাজানো গল্প। मैं गाड़ी, उनका जो गाड़ी है ना, उनका गाड़ी मेरे को क्रॉस करके आगे, मतलब मेरा ड्राइविंग स्पीड वही 40-50 का होगा, ठीक है। उनका मेरे ख्याल से 60 के आसपास होगा, जहाँ मेरे को क्रॉस करने में जितना स्पीड लगा उनको, तो वो उसी स्पीड में जब आगे आए ना, जो यहाँ मेरा पीछे था, मतलब मेरे को क्रॉस कर लिया था वो गाड़ी। मैं अपने नॉर्मल उसमें ड्राइविंग जो स्पीड होता है 50-60 की स्पीड में आ रहा था, 40-50 का स्पीड होगा, उनका 60 होगा, ठीक है। तो उन्होंने मेरे को क्रॉस किया है, नहीं, जो चंद्रदा का जो गाड़ी था वो मेरे को क्रॉस किया है। क्रॉस करके जैसे ही आगे निकला ना, लगभग 100-150 मीटर की दूरी में आगे निकल गया होगा, तब तक वो गाड़ी अचानक खड़ा हो गया रास्ते में, मतलब ब्रेक लगा के खड़ा हो गया। शायद मेरे को आवाज भी आया था ब्रेक का, खड़ा हो गया। और जैसे ही खड़ा हुआ ना, पीछे से एक बाइक आया और एकदम चंद्र का लेफ्ट साइड में, राइट साइड में ड्राइविंग चल रहा था, लेफ्ट साइड में आया, एकदम एक पैर से बैलेंस किया, एक बंदा जो मेरे को दूर से दिख रहा था, बैलेंस किया और सीधा अपना शूट आउट शुरू कर दिया। आपने देखा? मैं पीछे से, मैं 100 मीटर की दूरी में था, मतलब मेरा गाड़ी चल रहा था उस समय पूरी स्पीड में। मैं देख करके जब तक वहां पे थोड़ा सा भीड़ लग गया था, ये तो भाग गया था। ये कितने लोग थे? एक बाइक में एक ही बंदा बैठा हुआ था। हाँ, एक पैर से बैलेंस किया, मतलब बहुत एक्सपर्ट लग रहा था मेरे को, जहां तक लग रहा था। एक पैर से इसने लगाया, बाइक जैसे लगाता ना, थोड़ा सा हाइट ज्यादा होगा लेकिन पतला सा था बिल्कुल। बाइक का इतना ध्यान नहीं है मेरे को, नहीं। वो गाड़ी का नंबर जो है ना, वो मेरे को 74 था, WV 74 समथिंग लाइक दिस, ठीक है। मैं तो घर ही नहीं गया हूँ अभी, तो मैं फॉर्चून मैं, मेरे पीछे गाड़ी था, मैं तो पार्क कर दिया गाड़ी। पार्क करके मतलब रास्ते में गाड़ी लगा के वो जगह नहीं मिल रहा था, तो थोड़ा सा जो टाइम लगा ना, तब तक मैं वो सब तो कांड हो गया। तो क्या वो तुरंत वहीं से भाग लिया? बाइक से ही निकल गया? बाइक से ये निकला, और गाड़ी शायद वहीं से निकला। उसके बाद गाड़ी तो मेरे ख्याल से कहीं छोड़ दिया, गाड़ी छोड़ा, वो सब बाइक से निकला है। तो क्या ये लग रहा था बहुत देर से फॉलो कर रहा था वो बाइक? मेरे को तो ऐसा लग रहा है, क्योंकि प्री प्लान था, जहां तक मेरे को लग रहा है, क्योंकि अचानक ऐसे गाड़ी तो कभी नहीं आता है सामने, किसी के सामने ऐसा गाड़ी नहीं आएगा। पॉइंट रेंज से एकदम साइड से गोली चलाया, एकदम जैसे ये स्कॉर्पियो गाड़ी है ना, ऐसा ही स्कॉर्पियो गाड़ी था एकदम। एक यही गाड़ी है क्या? हाँ, यही गाड़ी था। अरे बाप रे, एकदम सामने जैसे ये गाड़ी है ना, यहाँ पे खड़ा था बंदा, एकदम सामने खड़े होकर के पॉइंट रेंज में गाड़ी चलाया, गोली चलाया। आपको आवाज सुनाई दी? गोली की 2 गोली की आवाज सुनाई दिया, तीसरा का नहीं सुनाई दिया मेरे को।
ठीक है, ये ऐसे ही मारा था गोली एकदम। मेरा होगा ज्यादातर यहाँ से 100 मीटर 150 मीटर की दूरी में। ये गाड़ी जैसे खड़ा हो गया था ना, खड़े होने के बाद सीधा गोली चलाया। आपने भी गाड़ी रोक लिया था उसी वक्त? मैंने गाड़ी नहीं रोका था, मेरा गाड़ी चल रहा था। ठीक है, मैंने ध्यान नहीं दिया। আৰু পিছত থকা তেওঁৰ পিছফালে থকা গাড়ীখনৰ ব্যক্তিগৰাকীয়ে গোটেইখিনি কথা বিৱৰি কৈছে। ইয়াৰ সৈতে সময় হ'ল এতিয়া বাতৰিৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ, কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত এই ঘটনাৰ সবিশেষ আমি আমাৰ দৰ্শকক জনাই গৈ থাকিম।